ابھی آپ کو بتائیں کہ نواز شریف اس وقت پارٹی رہنماؤں سے خطاب کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. ان کا تعلق لازماً کسی نہ کسی کرپشن کے ساتھ ہے. ان کا تعلق لازماً کسی نہ کسی کک بیک سے تعلق ہے. ان کا تعلق لازماً کسی نہ کسی کمیشن کے ساتھ ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کوٹیکنا کا ایک بڑا واضح کیس ہے, ای او بی آئی کا ایک بڑا واضح کیس ہے, اسی طرح سے این ایل سی کا بڑا واضح کیس ہے, این آئی ایل سی کا بڑا واضح کیس ہے, اسی طرح سے جو ہے وہ یہ حج سکینڈل بڑا واضح کیس ہے. اور بھی ہیں جن کا براہ راست تعلق سرکاری ایمبیزلمنٹ سے ہے, سرکاری خزانے کی خرد برد سے ہے. آج تک کبھی کوئی ایسا کیس نیب کے پاس نہیں ہے جس میں کوئی کرپشن کا ذکر نہ ہو, کوئی سرکاری ایمبیزلمنٹ کا نہ ہو خزانے کی, جس کے اندر کوئی جو ہے وہ کک بیک کمیشن یا کسی ٹھیکے میں کوئی کمیشن کا کیس کوئی ایسا نہیں ہے. جہاں تک میرا کیس کا سوال ہے, صرف اور صرف ہمارے خاندانی جو جائیداد ہے ان کے گرد یہ سارا کیس گھومتا ہے, اور وہ بھی 1964 سے شروع کیا جب میرا کوئی سیاست سے تعلق نہیں تھا. دور دور تک نہ میں وزیر اعظم تھا, نہ وزیر اعلیٰ تھا, نہ وزیر تھا, نہ مشیر تھا. اور آپ کو شاید پتہ ہی ہوگا 1972 میں 1971 میں جنگ ہوئی ہندوستان پاکستان کی. جنگ کے فوراً بعد ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم بنا. اس نے پاکستان کی ویسٹ پاکستان کی فیکٹری لے لی ہماری, یعنی آنکھ جھپکنے میں اس کو نیشنلائز کر لیا. ہماری اسی طرح کی ایک فیکٹری ڈھاکہ میں تھی ایسٹ پاکستان میں, وہ بھی بنگلہ دیش کے ساتھ چلی گئی. ادھر والی وہ لے گئے. ہم والد صاحب میرے انہوں نے فیصلہ کیا کہ دبئی میں چل کے تو ایک سٹیل مل لگاتے ہیں. یہ 1972 کا واقعہ ہے. اب مجھے آپ بتائیں کہ اس کو بھی کھنگال رہے ہیں. ایک گلف سٹیل مل لگی تھی بھائی, کتنے کی لگی تھی, کیسے لگی تھی؟ بھائی پہلے تو تم ہمیں حساب دو کہ نیشنلائز کر کے تم نے ایک ٹکا بھی دمڑی بھی کمپنسیشن نہیں کی, نہ دی ہمیں, تو وہ کیوں نہیں دیا آپ نے؟ کیا وہ ہمارا حق نہیں تھا؟ آپ نے مفت میں لے لی اپنا 1937 سے لگائی ہوئی فیکٹری کی ساری جائیداد کمائی آپ اڑا لے گئے, اور پھر اس کی تو بات نہیں کرتے. ہمیں الٹا پوچھ رہے ہیں کہ جب آپ کے پاس آپ کی جیبیں خالی تھی تو آپ دبئی کیسے پہنچ گئے اور وہ فیکٹری کیسے لگائی؟ اور جو اربوں روپے کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تسلی سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی نہیں ان کو جو ہے وہ پوچھنے والا نہ بلانے والا. اس سے پہلے بھی میں 7 سال جلاوطنی میں رہا, اس سے پہلے بھی میں 14 مہینے جیل میں رہا. کیوں رہا؟ میں تو اس کا بھی جواب آج تک حاصل نہیں کر سکا. مجھے اس کا بھی نہیں پتہ لگ سکا کہ کیا وجہ تھی کہ میں اٹک قلعے کے اندر 14 مہینے بند رہا, اور اس کے بعد پھر میں 7 سال پاکستان سے باہر رہا, اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس ملک کا تیسری مرتبہ مجھے وزیر اعظم بنا دیا. میرے لیے بہت بڑی آنر ہے یہ. لیکن اس کے بعد میرا خیال تھا کہ معاملہ ختم ہو جانا چاہیے, اور اس ملک کے اندر اس طرح آئین کے ساتھ زیادتی, ظلم, اور پاکستان کے قانون کے ساتھ زیادتی, اور پھر کسی ایک شخص کے ساتھ اتنی زیادتی جو ہے وہ اتنی دور تک نہیں جانی چاہیے تھی. اور میں وہ شخص ہوں جو دوسرے اداروں کا ہمیشہ احترام کرتا رہا ہوں, اور ہم نے تو عدلیہ کے لیے ایک لانگ مارچ بھی کیا, اور عدلیہ اللہ کے فضل و کرم سے بحال ہوئی. کئی لوگ ہوتے ہیں جو ڈرنے والے نہیں ہوتے, اور الحمدللہ مجھے بڑا فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری پارٹی کے اندر بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں, بلکہ اکثریت ان کی ہے جو ماشاءاللہ ڈرنے والے نہیں ہیں, گھبرانے والے نہیں ہیں, اور انشاءاللہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں. میرا ضمیر مجھے یہ کہتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے, حالانکہ میں بھی ایک انسان ہوں,
गलतियां इंसानों से होती हैं, गुनाह भी इंसानों से होते हैं। वो इंसान ही नहीं जिससे कोई गलती या गुनाह ना हो। तो मैं कोई सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं हूँ। मैं तो आपसे भी शायद कमज़ोर आदमी हूँगा, लेकिन मुझे मुल्क व मिल्लत से मोहब्बत है, अपनी कौम से मोहब्बत है, और वो मोहब्बत भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मेरे बारे में हर दफ़ा क्या सराई होती है कि लंदन चला गया है, अब उस वापस नहीं आना, इसने वापस नहीं आना। अभी मैं आपको पता है कि मैंने एग्जामिशन के लिए अप्लाई किया था कि 1 हफ्ते की मिल जाए, लेकिन वो ना मिल सकी। तो लंदन जाना भी मेरा ज़रूरी था अपनी वाइफ को देखने के लिए। तो बस वहाँ से गए और फिर वापस आ गए। और जो ये क्या सराई कर रहे थे कि मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ उनसे कि वो यानी क्यों आप इस तरह की क्या सराइयाँ करते हैं, जबकि आपकी हर दफ़ा क्या सराई झूठी पड़ जाती है और झूठी साबित होती है। मेरा ख्याल आप भी अपने दिल से वादा करें कि आइंदा इस किस्म की क्या सराइयाँ आप नहीं किया करेंगे। पिछले 70 सालों में कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद वो लोग जिनको अवाम ने वोट दिया, वो अपना 3 शख्सियात हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो, और ये नाचीज़। मैं अपने आप को भी उस 3 की लिस्ट में अल्हम्दुलिल्लाह शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम अल्लाह के फजल करम से उन्होंने मुझे अपनी बेपनाह मोहब्बत से हमेशा नवाजा है। क्या वजह है कि ये 3 तो एक तरफ रखें, किसी भी वज़ीर आज़म ने आज मुल्क के अंदर अपनी मुद्दत हुकूमत मुकम्मल नहीं की। इसकी वजह तो ढूंढनी चाहिए, और हिंदुस्तान में हर वज़ीर आज़म ने अपनी मुद्दत हुकूमत जो है वो मुकम्मल की है। क्या वजह है? इसकी वजह तलाश करनी चाहिए हमें। और फिर यहाँ पर रिवायत पड़ गई, किसी को टांग दो, फांसी दे दो, किसी को जलावतन कर दो, किसी को हथकड़ियाँ पहना के जेलों में डाल दो, किसी को किलों में बंद कर दो। और ये सब कुछ सियासतदानों के खिलाफ होता रहा है, इलेक्टेड लीडर्स के खिलाफ होता रहा है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स के खिलाफ होता रहा है। कोई तो एक बंदा जो है वो ये कहे कि जनाब ये फलां वज़ीर आज़म ने अपनी मुद्दत जो है वो मुकम्मल की है। इसकी वजह सबको मालूम है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो सिलसिला है पिछले 70 साल से जारी है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरी ज़ात की बात नहीं है, मेरा ज़ाती मफाद मुझे कतन जो है वो उसका ताल्लुक़ नहीं है। इसका ताल्लुक़ बराह रास्त पाकिस्तान के साथ है। और अभी आप यानी कि इसी तरह से इंस्टेबिलिटी और डिस्टेबलाइजेशन का एक दौर शुरू हो जाता है। इतना तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ चल रहा था, सफ़र कर रहा था। सी पैक के तहत मंसूबे लग रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में ऐड की है, जिसने पाकिस्तान के अंदर जो है लोड शेडिंग को अमलन तकरीबन ख़त्म कर दिया है। अभी नीलम झेलम जैसे जो बिल्कुल जो फंसे हुए प्रोजेक्ट थे, वो भी हमने उनको अभी चलाया है, उसकी भी अपना इनॉग्रेशन हो चुकी है। तरबेला 4 जैसे मंसूबे, और फिर एक वो जो सियालकोट के पास है जो नंदीपुर, उसको हमने कितने सालों से ये बंद थे, हमने इन सब को एक एक करके चलाया, उनको पूरी मेहनत की, और आज वो चल पड़े हैं सारे मंसूबे माशाल्लाह। कई नए मंसूबे लगाए हैं LNG के, और जिसकी वजह से माशाल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ है। और ये जो कोयले पे चलने वाले पहली मर्तबा मुल्क में मंसूबे लगे, ये सब कुछ पिछले 3-4 सालों में हुआ है। वज़ीर आज़म का शुक्रिया जिन्होंने इस बात का एतराफ़ किया, शायद खाकान अब्बासी साहब की बात कर रहा हूँ, कि इतना अपना मंसूबे हैं जो तैयार हो चुके हैं उसके लिए जो है वो इनॉग्रेशन के लिए, कि जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था।
हमने दिल लगाकर काम किया, मेहनत की, आपके इतने बड़े बड़े मंसूबे बनाए। आपके मुल्क के अंदर तो ये लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे के अलावा तो कोई रोड थी नहीं, आप काम किया इस मुल्क के अंदर। मुझ पे एक नया एक मुकदमा नैब का तैयार हो रहा है, देखे कब आता है वो अदालत में, जिसमें ये मुझ पे इल्ज़ाम है कि मैंने वो जो है अपने ड्राइविंड में जो सड़क बनाई है वो 20 फुट थी, तो मैंने उसको चौड़ी करवा के 24 फुट कर दी। मैं ये कह रहा था कि मोटरवे से पहले तो कोई एक मुल्क के अंदर ज़रा सी भी सड़क नहीं थी। अगर शायद लोगों को याद हो, पिंडी के आप रहने वाले हैं डिवीज़न के, 1985 में मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब बना था और सबसे पहले मैंने इस्लामाबाद मरी की सड़क बनाई थी। फर्स्ट टाइम वो रोड जो है ना, वो एक बेहतरीन रोड पाकिस्तान के अंदर उसने एक मिसाल कायम की थी। वो कार्पेटेड रोड थी और वो मैंने बनाई थी। जनरल ज़ियाउल हक मरहूम, उन्होंने मुझे बड़ी शाबाश दी, कहने लगे कि नवाज शरीफ साहब, मैं तो इस रोड पे कुछ दिन पहले मैंने ड्राइव किया है, मैंने बूरबन जाना था पिंडी से, तो मैं तो रोड देखकर हैरान रह गया, और इतनी अच्छी क्वालिटी की रोड आपने बनाई है। और फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर हमने पंजाब में फिर और बढ़ाया। मैं पंजाब का चीफ मिनिस्टर था, प्राइम मिनिस्टर आया, इस मोटरवे की बुनियाद रखी। ये छः रोया थी मोटरवे, मोहतरमा ने इसको 4 रोया करने की उस पर ऑर्डर दे दिए। उनकी गवर्नमेंट गई, हमारी आई, हमने फिर इसको 6 कर दिया। और आज देखें कि क्या इसकी ज़रूरत थी या नहीं थी इस मोटरवे की। आपके नए नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं यहाँ पे, माशाल्लाह। आपका इस्लामाबाद का हवाई अड्डा आपका मुकम्मल हो रहा है, जो 4 मई को गालिबन उसकी इनाग्रेशन है। तो ये देख के दिल खुश होता है, लेकिन कभी कभी दिल सोचता है, यार हमने अपने मुल्क को क्या बना दिया था कि अगर हमने इतना अच्छा अगर एयरपोर्ट बनाया भी है तो दूसरे मुल्कों से ये लोग भी होने चाहिए जो यहाँ पर आया करें, फॉरेनर्स भी आया करें। यहाँ एक ज़माना था, बहुत देर की बात है ये, कि यहाँ पर ब्रिटिश ओवरसीज़ एयर कॉरपोरेशन BOAC भी आती थी यहाँ पे। बाद में ब्रिटिश एयरवेज बन गई, वो भी आई। एयर फ्रांस भी आ रहा था, लुफ्थांसा भी आता था, KLM भी आता था, TWA भी आती थी, पैनम भी आती थी, स्विस एयर भी आती थी, दुनिया जहान की। अब एयरपोर्ट पे जब जाओ तो यहाँ एमिरेट्स खड़ा होता है, कभी देखते हैं उसको, कभी सऊदी अरेबियन एयरलाइंस खड़ी होती है, कभी वहाँ पे कतर एयरवेज, चौथा कोई जहाज़ नज़र नहीं आता। कभी कभी ऐसा लगता है टर्किश एयरवेज भी रात को आता है, रात को ही चला जाता है। तो दिन में कभी कभी ये नज़र आते हैं। तो ये क्या वजह है? इसकी वजह भी हमें ढूंढनी चाहिए, ये इसकी वजह भी हमें तलाश करनी चाहिए। भाई खुद दुनिया क्यों भाग गई है? हमने दहशतगर्दी के खिलाफ इतनी बड़ी जंग लड़ी है और इतने हमारे फौजी भाइयों ने कुर्बानी दी है, इतने हमारे पुलिस के लोगों ने कुर्बानी दी है, इतने हमारे इंतज़ामिया और बाकी महकमात के लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, स्कूल के बच्चों तक ने कुर्बानी दी यहाँ पर इस मुल्क के अंदर, आम सिटीजन ने कुर्बानी दी है। लेकिन क्यों इस कुर्बानी को क्यों नहीं बाहर रिकग्नाइज किया जाता? हमारा नैरेटिव कुछ सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं है, हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इतनी कुर्बानियों के बावजूद, हजारों में कुर्बानियां हैं, हमारी शहादतें हैं, फिर भी वो हमारी बात मानने को तैयार नहीं। इतनी कुर्बानियां देने के बावजूद क्यों नहीं माना जाता? मेरे ख्याल है कि ये एक ऐसी चीज है जिसपे बड़े संजीदगी के साथ गौर होना चाहिए। और इन्हीं मामलात को मैं ठीक करने की भरपूर कोशिश कर रहा था। आपका डॉलर कहाँ जा रहा है, ये रुपया कहाँ जा रहा है, यानी कि मुसलसल गिर रहा है। आपकी स्टॉक मार्केट पहले 3 महीनों में जो है वो 54,000 से 53,000 से 37,000 पे आ गई, यानी एक फ्री फॉल हुआ। ये डॉलर का फ्री फॉल हो रहा है। पाकिस्तान के जो है वो ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो गिरते जा रहे हैं। कैसे इस मुल्क का कारोबार चलेगा, कैसे जो है वो पाकिस्तान तरक्की करेगा? ये तो हमने अल्लाह के फल से बहुत मेहनत करके 10,000
मेगा वाट और कई बेशुमार कारखाने अभी ज़ेर तामीर हैं, ये तो लगा लिए हमने, आगे क्या होगा? पाकिस्तान 5.4% मेरे होते हुए अपना ये तरक्की की शरह हमारी ऊपर गई। 3.9 हमने इनहेरिट किया था पीपल्स पार्टी की हुकूमत से, जिसको अल्लाह के फल से हम 5.5 तकरीबन 5.5 पे ले गए। अभी शायद 5.6 की उम्मीद है। आपका तो ये मुल्क है, 22 करोड़ अवाम इसमें रहते हैं, ये 22 करोड़ अवाम का कर्ज है आप पे कि आपने उनका मुस्तकबिल ठीक करना है, और उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो फिर मैदान अमल में निकले आप, ये निकलेंगे तो ये मुल्क ठीक होगा। हमने डरना नहीं है, और इंशाअल्लाह हम नहीं डरेंगे अल्लाह के फजल से, और शायद इसी में ही हमारे मुल्क कौम की बका है, हम सब की बका है। तो मैं ये बातें करने के बाद आपको ये कहना चाहता हूँ कि वोट को इज्जत दो पे हमें अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस वोट को इज्जत मिल जाएगी, ये मुल्क इंशाअल्लाह कायम हो जाएगा और ये मुल्क तरक्की की तरफ चल पड़ेगा इंशाअल्लाह। हमारे सारी मुसीबतें इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और जो 2-4 गए हैं वो कभी हमारे थे ही नहीं, वो ना थे हमारे, और ना शायद कभी आइंदा कभी भी नहीं होंगे हमारे। और इसी तरह से 2-4 और 5-7 और ये फसली बटेरे जो है, इनका ये उड़ान होती है इनकी इन दिनों में। ये दिन जो होते हैं ना आखिरी 2-3-4 महीने, ये इसी तरह गुजरते हैं। पार्टी माशाल्लाह पहले से ज़्यादा जज्बे में है, पार्टी अल्लाह के फजलो करना, और पार्टी जज्बे में है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अवाम जज्बे में है। ये मुझे और आपने अगर जज्बे में रखा हो तो अवाम ने रखा हुआ है। ये मत समझना कि मैं अपने आप में ही जज्बे में आया हूँ या आप भी अपने आप में जज्बे में आए, अवाम ने रखा हुआ है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमने अवाम को और जज्बे में लेके आना है और मोबिलाइज करना है, इंशाअल्लाह उनको और मोटिवेट करना है ताकि आप भी और ज़्यादा मोटिवेट हो जाएं। मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह कि ये दिन आने वाला है, और ये सारा जो मुहिम है, स्ट्रगल है, इस दफ़ा अल्लाह ताला ने इसको ज़रूर किनारे लगाना है, इसको कामयाबी के साथ आगे लेके जाना है अल्लाह ने। ये मेरा फर्म बिलीफ है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से अल्लाह ताला मुल्क में माहौल भी पैदा कर रहा है। आप इत्मीनान रखें, मेरी बातें अगर आपके दिल को लगी हैं तो फिर आप अपने दिल से अभी ऐद करें कि इंशाअल्लाह आखिरी वक्त तक आप ये जदोजहद करेंगे। मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ रावलपिंडी डिवीजन के पार्टी रहनुमाओं से खिताब कर रहे थे।